Hello friends, so in this video what we are going to discuss some of the scheme related to the employment which has been into the news for the last 6 or 7 month. In fact February से जो भी न्यूज़ में रहा है schemes उनको हम डिस्कस कर रहे हैं. Okay, and it will make sense or it will make much more sense than covering all of the schemes which are present and which are running for the last few years. उतना नहीं हमें जाना है, मेनली जो न्यूज़ में है उसी स्कीम को हम कवर करेंगे. तो फर्स्ट इज योर scheme is Prime Minister Employment Generation Program, PMEGP. Okay, so now this scheme was already there, but ये स्कीम 12th 5 year प्लान के एंड तक का था और 12th 5 year प्लान इज एक्सपायर्ड इन लास्ट ईयर मतलब 2017 में एक्सपायर हो गया. उसके बाद दिस स्कीम इज अप्रूव टू बी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 years, दैट इज फ्रॉम 17-18 टू 19-20. तो इसको इतने ईयर के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड हु हैज टेकन दिस डिसीजन? CCEA. तो आप देखेंगे स्कीम्स में जब भी आप लेक्चर सीरीज, ये स्कीम्स की लेक्चर सीरीज है, इसमें CCEA का नाम बहुत ज़्यादा आएगा. तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो दिस इज अ कैबिनेट कमेटी है जिसमें कि मिनिस्टर वगैरह होंगे जो कि मेजरली डिसीजन लेते हैं कि स्कीम को एक्सटेंड करना है, कोई नई स्कीम लानी है उसके बारे में डिसीजन लेते हैं. स्कीम के लिए 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ जितना पैसा एलोकेट करना है वो डिसाइड करते हैं CCEA. तो CCEA इज अ कमेटी विच इज डिसाइड most of all of the scheme and the budget outlay for those scheme. Okay, so now and it is generally being head by the Prime Minister of India. Okay, so now he has approved that this scheme should be extended for 2017-18 to 19-20. Okay, so now तो 17-18 से 19 में 17-18 में लास्ट ईयर भी इंक्लूडेड है. ओके, तो 2017 में एक्सपायर हो गया था, मतलब 16-17 में एक्सपायर हो गया था, दैट इज expired in 16-17. So 17-18 this that year which has been passed, present year 18-19 and coming year 19-20 में this scheme will be applicable. So that this is important to know कि कब तक ये extend किया है and what is the scheme all about, that we are going to discuss. Now further total budget outlay is इतना 5500 crores. If you can remember it, it's okay, otherwise you can skip it. Now अब स्कीम में होता क्या है, what is this scheme all about? So one thing is that this scheme, Prime Minister Employment Generation Program, is for the MSME sector, by the MSME sector for the small scale industry. So let's look at this thing. Okay, so scheme में these are various trivial facts like 75 project per district will be awarded, and majorly this scheme is being for the vulnerable section, which is women, SC/ST, OBCs, physical disabled persons. Okay, so now and they will be provided money to start some business. Okay, non-farm business. Okay, so now this is being targeted 75 project per district. Rate of subsidy is around 25 to 35% according to person. Now what is this PMEGP? It's a credit linked subsidy program. That is, if you want to start a business and if you belongs to any of this vulnerable section, then you will be provided loan to start some business. And this is to be small company, micro enterprises, and for the non-farm sector. This you should remember कि PMGP स्कीम इज़ फॉर द नॉन फार्म सेक्टर. अगर एग्रीकल्चर लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा कोई भी सब्सिडी वाला लोन अंडर दिस स्कीम. वो अलग स्कीम्स है फॉर सब्सिडी अंडर फॉर द एग्रीकल्चर, बट अंडर दिस स्कीम यू विल गेट द लोन इफ़ यू वांट टू स्टार्ट सम ओन शॉप. जैसे आपको साइकिल का दुकान लगाना है, इफ़ यू वांट टू सेट अप अ न्यू बाईसाइकिल शॉप, देन यू विल गेट द मनी अंडर दिस स्कीम. क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम. ओके, सो नाउ who is the nodal? One important thing is MSME sector is your implementer of this scheme. Okay, your KVIC, that is Khadi and Village Industries Commission, that is your nodal agency. Okay, nodal agency है, means major implementation KVIC के through होगा. Okay, so at the national level और state level पे भी KVIC है, district level पे और district IC होता है, district industry centers are there. तो मेजरली क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पर? स्कीम का एक्सटेंशन कब से कब तक का है, दैट इज दिस मच ऑफ अ ईयर. फर्दर नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है कि 5500 करोड़ के बारे में वो पूछेंगे. आई थिंक यूज अ मेजर बेनिफिशियरी एंड व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, व्हाट इज दिस स्कीम अबाउट? क्रेडिट लिंक सब्सिडी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड नॉन फार्म सेक्टर के लोन के लिए है. नोडल एजेंसीज KVIC. ओके, इतना आप ध्यान रखो, दैट इज द एनफ फॉर द एग्जाम. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट. स्कीम दैट इज Skill India partner. Skill India is basically Ministry of Skill Development and Entrepreneurship that has partnered with Ministry of Power. इसके लिए to implementation of सौभाग्य scheme. सौभाग्य scheme is not an employment generation scheme. सौभाग्य scheme है to provide electricity in every household. तो सौभाग्य scheme का full name आप देखेंगे, वो here it is written. I'm just highlighting. It's a प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना. So that is the सौभाग्य scheme. Okay, तो नाम में जो भी है, you should remember this name. And
what has been done that Ministry of Skill Development Entrepreneurship, जो मिनिस्ट्री है उसने पार्टनर किया विद मिनिस्ट्री ऑफ पावर, दैट इज मैन पावर इन 6 states. 6 states विल बी ट्रेन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सौभाग्य स्कीम, कि हर घर में बिजली प्रोवाइड करने के लिए यू नीड टू हैव अ पीपल लाइक लाइनमैन आपको चाहिए जो कि हर घर में बिजली प्रोवाइड करे, हर घर में कनेक्शन करे, ओके कुछ खराबी हो जाती है उसको ठीक करे. तो लोड्स ऑफ मैन पावर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सौभाग्य स्कीम, कि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए यू नीड टू हैव अ लोड्स ऑफ मैन पावर. दैट वुड बी ट्रेन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ओके, एंड फॉर दैट दे हैव कम इन द पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. और 6 states में कौन कौन से स्टेट है? असम अपने नॉर्थ ईस्ट में पड़ गया, बिहार ईस्ट में पड़ गया, अब मध्य प्रदेश मिडल में, झारखंड अगेन ईस्ट, बिहार झारखंड, ओके, एंड उड़ीसा again towards that side only, and Uttar Pradesh. Okay, these 6 states have been partnered. Okay, so now अब इसमें ये 6 स्टेट पार्टनर हुए, अभी तक 6 स्टेट है. इट मे बी दैट व्हेन यू आर हैविंग एग्जाम तो 6 से ज़्यादा स्टेट हो जाए, 6 से कम स्टेट हो जाए, लेकिन इट्स नॉट मीन्स दे विल नॉट आस्क द दिस नेम ऑफ 6 स्टेट्स, ओके, मीन्स बिकॉज ये 6 स्टेट ज़्यादा या कम हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम. इंपॉर्टेंट क्या है? स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल इज इन पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉर द सौभाग्य स्कीम. ओके, अब सौभाग्य स्कीम की फैक्ट पार्टनरशिप अराउंड दिस लाइनमैन, ये लाइनमैन आपको ट्रेन करेंगे 47,085 टेक्निकल हेल्पर, इस तरह के लोगों को ट्रेन किया जाएगा. कितने नंबर ऑफ करेंगे ये इंपॉर्टेंट है. 47,085 ये याद भी नहीं रख सकते, इंपॉर्टेंट भी नहीं है. ओके, उससे बेटर आप स्टेट के नाम याद रख लो, दैट इज मोर प्रॉफिटेबल बेनिफिशियल रेदर देन रिमेंबरिंग दिस नंबर्स. ओके, ये नंबर्स नहीं याद रखने. हाँ, अब नेक्स्ट है कि सहज हर किलो बिजली योजना है क्या चीज़? इट्स बेसिकली scheme to provide the benefit in the rural as well as in urban area. although primary benefit rural area है, हम देखते हैं अर्बन में भी बेनिफिट मिलेगा कि हर घर में पावर कनेक्शन प्रोवाइड करे जाएंगे. वो मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पावर कनेक्शन प्रोवाइड करे जाएंगे सब्सिडाइज पे. बीपीएल के लोग जो होंगे उनको तो फ्री में ही किया जाएगा. ओके, यू आर इफ यू लुक एट द बेनिफिशियरी SCCC के हिसाब से, दैट इज सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के हिसाब से, पीपल विल बी आइडेंटिफाइड, बेनिफिशियरी विल बी आइडेंटिफाइड एंड दे विल प्रोवाइड अ फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे फ्री में. अगर आप बीपीएल में नहीं या SCC में भी, देन ऑल्सो यू विल एबल टू गेट द कनेक्शन बाय पेमेंट ऑफ 500 रुपीज़. 500 रुपीज़ पेमेंट के साथ आपको कनेक्शन मिल जाएगा. मतलब बहुत ही सस्ते में कनेक्शन मिलेगा, सिर्फ कनेक्शन फ्री में होगा. इलेक्ट्रिसिटी जो आएगी उस पर कुछ सब्सिडी नहीं है, नो सब्सिडी ऑन दैट इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप जनरली इफ़ यू गो फॉर गेटिंग अ कनेक्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ओके, सो नाउ उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं. ओके, इट्स नॉट दैट फ्री, बट अंडर दिस स्कीम इट वुड बी फ्री फॉर द रूरल एरिया और अर्बन एरिया में कुछ लोग. इफ यू लुक एट वाई एम सेइंग इट्स नॉट ओनली फॉर द रूरल एरिया, प्राइमरी बेनिफिट रूरल एरिया, बिकॉज आप देखेंगे कि टोटल आउटलेट इज जितना 6,320, उसमें से मेजर इज फॉर द रूरल एरिया विल गेट द 14,000 crore. अर्बन एरिया के लिए बहुत कम है, तो प्राइमरी बेनिफिट रूरल एरिया, लेकिन अर्बन एरिया को भी बेनिफिट होगा. फर्दर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो भी ग्रांट मिलेगी, जो भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कुछ पार्ट उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कुछ पार्ट लोन के थ्रू मिलेगा, कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट अपनी ग्रांट के रूप में देगी. ओके, सो नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, दैट इज अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट कुछ दे रहा है और उसने लोन लेके पैसा दे रहा है फॉर इम्प्लीमेंटेशन दी सौभाग्य स्कीम, उस केस में उसका 50% ऑफ लोन विल बी कवर्ड ग्रांट इनटू द ग्रांट. मान लो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 crore रुपीज़ दिया टू इम्प्लीमेंट द स्कीम, तो 50 crore ग्रांट में कन्वर्ट हो जाएगा. इन केस दे विल एबल टू अचीव द इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट बाय एंड ऑफ 2018, मतलब 31 दिसंबर 2018 तक अगर वो सारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड कर देता है, इलेक्ट्रीफाइड मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए मनी चाहिए उसको 50% ऑफ दैट मनी विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्रांट. रिमेंबर, ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मनी, 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है. मान लो एक डिस्ट्रिक्ट और एक स्टेट में 100 crore का टोटल खर्चा आ रहा है टू इलेक्ट्रीफाइंग दैट, 60 रुपीज़ विल बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 30 रुपीज़ एज ए बैंक लोन विच विल बी अगेन burden of that bank loan will take the state government only. Remember that electricity is comes under the state government purview. Okay, so state government purview मतलब अगर आपको इंडियन पॉलिटी का थोड़ा बहुत पता है तो हर सब्जेक्ट बांटे हुए कि स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है. तो 30% स्टेट गवर्नमेंट एज ए लोन लेके बैंक से इंप्लीमेंट करेगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट अपना जेब से मतलब अपना जो भी उसके पास ग्रांट वगैरह उसके थ्रू करेगी. ओके, अब ये लोन जितना भी लेगी स्टेट गवर्नमेंट उसका 50% आपका ग्रांट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप 31 दिसंबर 2018 तक हर घर में बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं तो. ओके, सो दिस इज वन थिंग. अनदर इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, REC इज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ओके, सो REC
क्या है, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन विच इज कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आते हैं, वो नोडल एजेंसी है टू ऑपरेशनलाइज दिस स्कीम। ओके, तो नाउ और उसके बाद इसको डिवॉल्व भी किया गया, जैसे ग्राम पंचायत हो गया और पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन द रूरल एरिया वी कैरी आउट द बिलिंग एंड कलेक्शन। मीन्स मेन नोडल एजेंसी आपकी REC है, मेन नोडल एजेंसी इज रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, अंडर विच ऑल दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेशन, कि सभी काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखने का काम है। उसके बाद ग्राउंड लेवल पे ग्राम पंचायत विल कलेक्ट द बिल्स। ओके, फर्दर फ्री कनेक्शन एंड अदर थिंग्स इट हैज बीन रिटन। नो सब्सिडी इंपॉर्टेंट, नो सब्सिडी फॉर द मंथली इलेक्ट्रिसिटी, कंजम्पशन पे नहीं होगा, आपका बिल जितना रहा वो आपको उतना पे करना पड़ेगा, सिर्फ कनेक्शन फ्री में मिला। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू बी नो विच यू शुड नो। तो इतना तो सबको ठीक है, इतना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, जनरली न्यूज़ वगैरह में देखते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट विच इज नॉट वेरी मच हाईलाइटेड इन टू द न्यूज़, दैट इज इन रिमोट एरिया, लाइक आपका कोई गाँव है, लद्दाख में कोई गाँव है, ओके, देयर इज अ विलेज इन द लद्दाख, जहाँ पर इट्स नॉट ईजी टू spread the your transmission line, electricity का transmission line feasible नहीं है इतना, उस केस में what they will do, they will provide the solar power pack along with the battery bank। what does that mean, कि एक सोलर पावर, एक सोलर सेल लेंगे, तो सोलर सेल आपका दिन में, साथ में बैटरी का बैंक भी रहेगा, तो सोलर सेल से दिन में लाइट आया, उस लाइट को यू विल स्टोर इन टू द बैटरी बैंक एंड इन नाइट यू कैन डू दैट थिंग। ओके, सो दैट मीन्स यू कैन यूज दैट इलेक्ट्रिसिटी विच हैज बीन स्टोर्ड इन टू द बैटरी बैंक। तो दिस इज वट वुड हैपन इन टू दिस स्कीम, सौभाग्य स्कीम। और तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से हम कर रहे थे वीडियो, लेकिन वाई ये इलेक्ट्रिसिटी बीच में कहाँ से है, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप हैज come into the agreement or come into the you can partnership with the Ministry of Power to implement this सौभाग्य स्कीम। तो सौभाग्य स्कीम भी हमने देख लिया। ओके, तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें सौभाग्य स्कीम में, एक तो ये रूरल और अर्बन दोनों के लिए, लेकिन प्राइमरी रूरल है, लेकिन अर्बन के लिए भी है। फर्दर जो भी स्टेट गवर्नमेंट का ग्रांट होगा, सॉरी लोन होगा, उसको ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन केस दे अचीव देयर टारगेट बाय 2018। जो भी SCC 2011 के हिसाब से जो भी BPL है उनको फ्री में कनेक्शन दिया जाएगा। इफ़ यू आर नॉट coming under this you are excluded from this BPL कैटेगरी, तो 500 रुपीज़ का आपको रुपीज़ में आपको बिल का कनेक्शन दे दिया जाएगा। इट्स वेरी चीप। नोडल एजेंसी REC, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन। ओके, सो नाउ एंड जहाँ पर ग्रिड नहीं पहुँच सकती, जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन नहीं पहुँच सकती है, देयर यू विल प्रोवाइड द सोलर पावर विद बैटरी बैंक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ही डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम पोर्टल। ओके, तो ठीक है, इसमें अब इफ़ इट इज़ अ डिजिटल थिंग तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें काम करेगी। तो माइटी इज द मेजर योर मिनिस्ट्री विच इज हैज लॉन्च दिस थिंग, डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम पोर्टल। ओके, सो अब इसमें क्या होगा कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप है तो बेसिकली दे विल गिव यू द इंटर्नशिप रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जाएगा। ओके, सो नाउ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, दिस इज द मिनिस्ट्री। फर्दर जनरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का जो भी इंटर्नशिप रहता है वो फ्री में होता था पहले। नाउ इन दिस स्कीम व्हाट हैज बीन डन, अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो यू विल गेट 10,000 पर मंथ। ओके, 25 इंटर्न्स विल बी इंडक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ एंड 10,000 आपको कुछ पैसा मिलेगा, मेनली ये बात है। ओके, अब इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है कि मतलब यू सिक्योर्ड सम मिनिमम मार्क्स, MTech BTech पीपल कैन अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस थिंग, इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री MEIT। ओके, एंड नेम ऑफ द स्कीम इज डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम। ओके, और फर्स्ट टाइम दे आर प्रोवाइडिंग द सम स्टाइफंड also। नाउ दिस इज द R&D, साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी में दे विल प्रोवाइड यू द दिस इंटर्नशिप। नाउ next is the Samarth scheme. Okay, Samarth scheme, Samarth, you must be knowing it's an Hindi word. Samarth is nothing but empower. If you are having the Samarth, that is you are empowered, आपको power मिला है। तो scheme is something like that. It's a basically scheme for capacity building in textile sector. Okay, so scheme for Samarth scheme is scheme for capacity building in textile sector। अब कैसे ऐसे Samarth बना दे ये सोचने की बात है, लेकिन हाँ, स्कीम इज नथिंग बट इट्स समथिंग लाइक दिस कि आप टेक्सटाइल सेक्टर में यू विल बी ट्रेंड अंडर द इन द टेक्सटाइल सेक्टर, कि आपको टेक्सटाइल में जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह होते हैं, जो भी टेक्सटाइल के जो भी निटी-ग्रिटी होते हैं बिजनेस में, उसके लिए यू विल बी ट्रेंड। ओके, सो यू विल बी प्रोवाइडेड द यू विल बी समर्थ इन डूइंग द यू विल बी बीइंग समर्थ इन डूइंग द टेक्सटाइल बिजनेस। तो उसके लिए ये स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत है।
Okay, so Smriti Irani was textile minister who has launched this scheme. Okay, so now अब important scheme है, एग्जाम्पल समर से तुम आइडिया नहीं लगा सकते टेक्सटाइल से रिलेटेड है. ओके, तो बट इट्स अ टेक्सटाइल रिलेटेड स्कीम. हाँ, एम्प्लॉयमेंट है जनरेट करेगी टेक्सटाइल सेक्टर में. मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल अप्रूव्ड इन लॉन्ग बैक दिसंबर 2017. ओके, फर्दर ये स्कीम है क्या चीज़, इट डिमांड ड्रिवन प्लेसमेंट ओरिएंटेड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. ये तीनों वर्ड मतलब इंपॉर्टेंट है. जो भी डिमांड है, जिस चीज़ की भी डिमांड है टेक्सटाइल सेक्टर में, डिमांड ड्रिवन आपको ये प्रोवाइड करेगी स्किल. ओके, इफ डिमांड इन द टेक्सटाइल सेक्टर इन सम स्पेशल टाइप ऑफ डिजाइनिंग, तो उस डिजाइनिंग में आपको ट्रेन किया जाएगा. एंड यू विल ट्रेन सच दैट यू विल प्लेस्ड. अगर डिमांड ड्रिवन है तो प्लेस आपको कर ही दिया जाएगा. मतलब दैट इज देयर इज हायर चांसेस दैट इफ यू आर हैविंग दैट स्किल तो यू विल गेट प्लेस. तो प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो गया. नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कंप्लाइंट. व्हाट डज दैट मीन? NSQF आप कई बार देखेंगे इस चीज़ को. एंड NSQF इज नथिंग बट देयर इज एन स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विच हैज बीन मेड. ओके, ये भी स्किल इंडिया बना. तो उसमें आप अगर कोई भी स्किल आप जनरेट कर रहे हैं, उस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आप उस स्किल को ले रहे हैं, तो यू विल गेट सम सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपको ये चीज़ आती है. अब इस सर्टिफिकेट को लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, एंड दैट सर्टिफिकेट इज शोइंग दैट यू नो दिस स्टफ. तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कंप्लाइंट है. तो मतलब जो भी फ्रेमवर्क बना हुआ है उसके हिसाब से जिस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए वही ट्रेनिंग दी जा रही है. ओके, सो दैट इज NSQF. Programming to incentivize the supplementary effort of the creating job in textile sector. It will target claim to 10 lakh person. तो टारगेट है क्लेम करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 years. टारगेट इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू कैन रिमेंबर इट्स गुड. फर्दर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्किल के लिए इन्वॉल्व कर दिया उसके बाद आप जा नहीं रहे हैं सीखने के लिए. और मतलब जो भी जनरली ऐसा होता है ना कॉलेज में, इफ़ यू अवेयर दैट थिंग दैट इज इन कॉलेजेस एंड स्कूल समटाइम्स इट्स हैपन दैट you just enroll yourself for the program but you don't go into that class or program. Okay, just get the, you are enrolled yourself just to get the certificate. That should not happen. For that there is a centralized management information system so that real people will go and attend these skills. Okay, so this thing क्योंकि गवर्नमेंट पैसा लगा रहे तो it should be implemented. समर्थ स्कीम इंपॉर्टेंट है. समर्थ स्कीम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर. ओके, सो लॉन्च इन लास्ट ईयर दिसंबर. फर्दर NSQF implement compliant structure है, and its target is 10 lakh people will be trained in next 3 years. Okay, so now next theme is green skill development program. Government was full fledged green skill development program. Now नाम से पता लग रहा है green skill मतलब कि you will be trained with those skill which is basically help in developing the environment को कंजर्व करने में जो हेल्प करेगा. फॉर दैट टाइप ऑफ स्कीम्स यू विल बी ट्रेन. सो हु इज लॉन्चिंग इट? तो ग्रीन स्किल है. तो जनरली देयर इज ऑलवेज कन्फ्यूजन कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कर रही या कोई और मिनिस्ट्री करेगी. तो ग्रीन स्किल डेवलपमेंट इज बेसिकली लॉन्च बाय MOEFCC. इट्स ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज which is launched this scheme. Okay, under this scheme what would be done? That is green skill development program GSDP, under which people will be working in the environment and forest sector will be trained through the 30 courses. Okay, so ठीक है, ये इतना ध्यान नहीं रखना कि कितने कोर्सेज क्या कोर्सेज, बट हाँ people will be trained for the environment and forest sector. There is a mobile app which is GSDP, you know, Green Skill Development Program. It's NVIS mobile application. Okay, which talk about the GSDP program. So what is ENVIS? We just look at in as we go along. Okay, so now अब ये स्कीम एक नई स्कीम तो है. बेसिकली द लेवल एट विच दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन लॉन्च्ड विद फुल फ्लेज लेवल, बट इन द पायलट वे से शुरू किया गया था इन 2017 फॉर द फ्यू प्लेसेस ओनली. एंड अंडर दिस स्कीम यू स्पेशली 10-12 ड्रॉप आउट आर ट्रेन. ओके, उनको ट्रेन किया गया फॉर वर्किंग इन द एनवायरमेंटल सेक्टर. Okay, so now this ENVIS is nothing but Environment Information System. ENVIS Environment Information System है. और ग्रीन स्किल 30 प्रोग्राम इन डाइवर्स फील्ड में आपको ट्रेन किया जाएगा. एनवायरनमेंट में पौधों की वैरायटी के बारे में, फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करें, कैसे इफ देयर इज सम थिंग दैट इज विच इज बिंग मीन्स लाइक हाउ टू कंजर्व दी फॉरेस्ट और एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व, जिस तरह के आपको प्रोग्राम को किया जाएगा. और वट अगेन दिस स्कीम इज अंडर NSQF फ्रेमवर्क. NSQF कंप्लाइंट है. जो भी आपको स्किल दिया जाएगा दैट इज अंडर दैट इज सेटिस्फाइंग द NSQF फ्रेमवर्क. ओके, सो नाउ फर्दर ग्रीन स्किल में बेसिकली
एक तो इट विल हेल्प इन नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन. what is nationally independent nationally determined contribution, INDC, actually full name is this, INDC. Okay, so that we will discuss in the environmental section. Sustainable development goal, again a different section will be through which they will try to through this skill development this objective will be achieved. Okay, so now we'll look at this SDG, INDC, waste management rules as we go. I will look at into the our environmental section. Now next is solar Chakra mission. Solar Chakra mission is again, देखने में तो नाम लग रहा है कि it's something related to the sun energy or something like that. It's not like that. It basically related to the artisan work, traditional works. Okay, artisans जो होते हैं. तो इसमें क्या है सोलर चक्रा मिशन में, बेसिकली अंडर दिस मिशन गवर्नमेंट विल डिस्बर्स some amount of money, subsidy amount of money for whom? For the artisans generating employment in the rural area. Like artisan क्या होता है बेसिकली, लाइक some type of एम्ब्रॉयडरी होता है आपका, जैसे कढ़ाई वढ़ाई करना कपड़ों में या कोई अच्छा सा डिज़ाइन बनाना जो कि ट्रेडिशनल है, उस तरह का चीज़. ओके, लॉन्च बाय MSME सेक्टर, MSME मिनिस्ट्री एंड उद्यम संगम was, उद्यम is nothing but Hindi word for the business. Udyam Sangam is a meeting type of thing. Okay, so National MSME Conclave on occasion of World MSME Day. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव. सोलर चक्रा मिशन फॉर द आर्टिशंस अंडर विच सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू देम. फर्दर it was launched in Udyam Sangam Day, which is happened to be on the World MSME Day, which is observed on 27 जून को वर्ल्ड MSME डे होता है, अंडर विच उद्यम संगम डे was organized. On that thing सोलर चक्रा मिशन was launched. Okay, further एक संपर्क पोर्टल है which is nothing but a digital platform which connect with the job seeker with the recruiter, basically for the artisans के लिए. like अगर if you want some traditional art, so you will can get yourself registered on the संपर्क, और संपर्क पे कोई जो कि इस तरह की आर्ट प्रोवाइड करता है वो भी रजिस्टर होगा. So this way buyer and the seller are coming together. This is under the solar chakra mission. Sampark portal is that digital platform which is providing this thing. Under this also, क्योंकि जब ये launch किया था उस time there is a also mention of उद्यम शक्ति portal. अब उद्यम शक्ति it's not शक्ति, it's सखी, and सखी का नाम है तो you understand it's a Hindi word for the girl, for the friend who is a lady. So now उद्यम सखी portal was launched, under which वुमेन एंटरप्रेनर्स के लिए ही स्पेसिफिकली ये पोर्टल है कि इफ दे वांट टू रजिस्टर योर सेल्फ कि हम इस तरह का वर्क करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ थिंग. फर्दर दे मीन्स फॉर एग्जाम्पल दे आर मेकिंग द पिकल, तो अंडर उद्यम शक्ति पोर्टल दे कैन रजिस्टर देयर, दे आर मेकिंग द पिकल टाइप ऑफ थिंग, एंड अगेन द पीपल कैन कॉन्टैक्ट दैट. सो दिस इज द अबाउट दिस संपर्क पोर्टल, उद्यम शक्ति पोर्टल. अंडर दिस मिशन मिनिस्ट्री ऑफ MSME कवर 50 क्लस्टर. ओके, सो सोलर चक्कर में 50 मतलब गाँव को क्लस्टर में बांट दिया जाएगा, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट एरिया. ओके, सो नाउ दे विल बी प्रोवाइडेड, इट विल अल्टीमेटली प्रोवाइडेड दे एज ऑलरेडी टोल्ड की स्कीम, मतलब इनको सब्सिडी वगैरह पे प्रोवाइड करी जाएगी, और कोई भी हेल्प की जरूरत है सो दैट दे कैन सेल देयर स्टफ, वो भी हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रेजेंट सोलर चक्र मिशन. वाई इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टू, इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम व्हाट इन व्हाट सेंस सोलर चक्र मिशन फॉर whom, संपर्क पोर्टल के बारे में, MSME डे कब होता है, और उद्यम संगम क्या था, और उद्यम सखी पोर्टल इज दे कैन आस्क अबाउट दिस थिंग. ओके, सो नाउ दिस इज द बेसिकली 6 स्कीम which is related to the employment. There are other schemes for related to the employment, like employment related to the woman itself, which we are going to discuss in next video. Okay, so just to summarize what we have done in this video, first we have done Prime Minister Employment Generation Program का extension हमने पढ़ा कि it is extended for 3 years. Further, what is this Pradhan Employment Generation Program, by which ministry it is, that we have covered, which is the nodal agency, that we have covered. Next we have studied that is Ministry of Power and Skill India Partnership. Okay, so here we have covered why they have entered into the partnership, for which state they have entered into the partnership, and then we have covered about the Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana के बारे में हमने primary benefit, with the primary benefit urban household is also beneficial, will get the benefit. And what is this scheme about? Under this scheme you will only get the electricity connection, not the free electricity. Who is covered, who is not covered, that we have covered. So that we have covered in this thing. Now Pradhan Mantri, then we have covered about the digital internship scheme, which is in a way the novice thing.
launched by which ministry, that we have covered. Then we have covered that they will provide the money, that is a stipend unko milega under this scheme. Okay, so now who is eligible, who is not eligible, that we have covered. Next is there the Samarth scheme we have discussed. Samarth scheme is basically for what thing, that is for the textile sector. Under this scheme what you will get, and this scheme is NSQF compliant. Okay, how many number of people will be trained under this scheme, that we have covered. Next is we have covered the full-fledged green skill development program, by which ministry it is. Okay, so now what is GSDP EYS mobile application के बारे में मैंने पढ़ा. Then what you will do in this scheme is basically people will be trained in environment and forest sector, that we have covered, and focus is 10-12 dropouts. Okay, so and again this is a national skill qualification compliant thing. Now next is we have done solar chakra mission. Solar chakra is not related to the sun energy or something like that, it's related to the traditional work, artisans work se hai. Then we have done, this was launched in MSME on MSME day under the Udyam Sugam occasion. Sampark portal के बारे में we have seen about the Udyam Shakti. Okay, so now this is about the various things which are covered into this video.